وجعل لنا التوفيق خير رفيق. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم ورسوله النبي الأمين المدين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم تمام حضرات سب سے پہلے گنبد خضرا کے جانب لگا کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي الرحمات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. غوث أعظم بمنيب سروسامہ مدد قبل ایدی مدد کعبہ با مدد ایسا ابلیس بے کرا مدد نوشہ بزم مدد سیدی مرشدی عین الدین ازبائے شرط زمان مدد. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر کسی میں کامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محبت کی نہیں جاتی محبت کی جاتی ہے. یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے اسے بھڑکایا نہیں جاتا. خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کی. رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. حضرات اتقوا اللہ خشیت الہی ہے کیا؟ آج ہمارے اندر ہمارے درمیان صرف دعوے کے طور پر یہ پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. صرف ہم دعویٰ ہی کرتے ہیں کہ وحدہ لا شریک سے ڈرتے ہیں. صرف ہمارے اندر دعویٰ ہی باقی رہ گیا، خشیت الہی ہمارے اندر نہ رہ گئی. آج ہم دعوے کے طور پہ کہہ دیتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں آج تم کہتے ہو ہم خدا سے ڈرتے ہیں، لیکن مؤذن مسجد میں اذان دے کر تمہیں پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، پھر کیوں نہیں آتے؟ یہ کیا خشیت الہی ہے؟ پتہ چلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اور شریعت کا پابند ہوگا اور ایسا پابند ہوگا کہ چلے گا تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق چلے گا، بیٹھے گا تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق بیٹھے گا، کھائے گا تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق کھائے گا. یعنی اس کے ہر فعل و قول جو ہوں گے شریعت کے مطابق ہوں گے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا. میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تم کہتے ہو ہم خدا سے ڈرتے ہیں، ذرا بتا تو جھوٹ بولتا ہے ذرا بتا تو کیا خدا سے ڈرتا ہے؟ تو نماز کی پابندی نہیں کرتا تو خدا سے ڈرتا ہے؟ تو روزہ نہیں رکھتا تو خدا سے ڈرتا ہے؟ شریعت کی خلاف تو کام کرتا ہے، ذرا بتا کیا تو خدا سے ڈرتا ہے؟ زناکاری میں تو مشغول رہتا ہے، ذرا بتا کیا تو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے؟ ذرا بتا. نماز کی بات آ گئی تو ایک بات بتاتا چلو. حدیث قدسی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے اپنے امان کو اٹھا لیا کرتا ہے. حضرات امان کی معنی ہوتے کیا ہیں؟ یعنی جس کے اوپر ہاتھ ہو، یعنی اگر اس پر کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہوا کرتی ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امان کو اٹھا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تم چاہے جہاں جاؤ تمہارے ساتھ چاہے جو ہو اس سے کوئی تعلق نہیں. یعنی امان کی بات آ گئی تو بتاتا چلو امان دے دی گئی ابابیل پرندے کو امان اٹھا لی گئی اصحاب فیل سے.
हजरत एक बात बताओ, अबाबिल परिंदा एक छोटा सा है और एक कंकर, अगर लाखों परिंदे अबाबिल एक हाथी पर छोटा सा कंकर गिराए फिर भी उसे तकलीफ ना पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब अमान दे दी गई अबाबिल परिंदे को और अमान उठा ली गई अस्हाबे फील से, तो वो छोटे परिंदे अपने मुंह में छोटा कंकर के जरिए उसे अस्हाबे फील को हिलाक करते हुए नजर आए। अब अमान की बात आ गई तो बताता चलो, अमान दे दी गई अमान उठा ली गई नमरूद से, अमान दे दी गई मच्छर को, तो छोटा सा मच्छर नमरूद को हिलाक करता हुआ नजर आता है। अमान दे दी गई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, अब अमान उठा ली गई आग को, आग का काम है जलाना, लेकिन जब अमान उससे उठा ली गई और अमान दे दी गई खलीलुल्लाह को, तो वो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ न दे सकी, वो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ न पहुंचा सकी। अमान की बात आ गई तो बताता चलो, दरिया का काम है गर्क करना, लेकिन जब अमान दे दी गई फिर अमान उठा ली गई फिरऔन से और अमान दे दी गई मूसा कलीमुल्लाह को, तो वो दरियाए नील फिरऔनियों को गर्क करते हुए नजर आई और हजरत मूसा कलीमुल्लाह उस दरिया से पार हो गए। और बात आ गई अमान की, हमारे जैसे पापी सियाहकार बदकार को ये ज़मीन हंसाती नहीं है, लेकिन याद रखना जिस दिन अमान दे दी गई इस ज़मीन को और अमान उठा ली गई हमसे, तो ये ज़मीन हमें उस तरीके से हंसाएगी जिस तरीके से हम ऊपर से नीचे गिरते हैं। बात आ गई अमान की तो बताता चलो, इस ज़मीन को जब अमान दे दी गई थी और उठा ली गई थी कारून से अमान, तो कारून को ये ज़मीन हंसाती हुई नजर आई। हम क्या हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करते, याद रखो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ने से अल्लाह की अमान हमसे उठा ली जाती है। और आप सोचते होंगे सिर्फ उलमा की जमात चिल्लाती है, चिल्लाने में कोई फ़र्क नहीं, हमें कुछ इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं, वो कहानियों को बयान करते होंगे, या कुछ सादिक होने वाला नहीं। हज़रात मैं दावे के तौर पे कहता हूँ कभी गलत नहीं हो सकता, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, ज़मीन व आसमान टूट फूट सकते हैं, लेकिन फरमाने नबी में कभी गलत नहीं हो सकता। तुम्हारे मानने में अगर गलत है तो उठाओ इसी चंद महीने की तारीख को देखो, कोरोना वायरस जैसी बीमारी हमारे दरमियान आई थी, लॉकडाउन के भी माहौल थे, मुशाहिदा करो इसी हालात को देखो, हदीस मुस्तफ़ा को देखो, आक़ाए नामदार साहबे किराम के मजमे में तशरीफ़ फरमा है। आक़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ साहबे किराम सुनो, एक दौर ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि ज़मीन जो है वो आपको अनाजों के साथ बीमारियाँ उगाएगी। ऐसा सुनो, आसमान जो है वो बारिश के साथ आफतें बरसाएगा, मुसीबतें बरसाएगा। और यही नहीं बल्कि जिस इंसान के जिस्म में जितना खून ना होगा उससे ज़्यादा बीमारियां होंगी, जितना इस इंसान के पास वज़न ना होगा उससे ज़्यादा बीमारियां होंगी, इंसान के जिस्म में जितने बाल ना होंगे उससे ज़्यादा बीमारियां होंगी। और आक़ाए नामदार रो रहे थे, आंखों से आंसू थे, कतार जारी थे। साहबे कराम ने सुना, पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सा ऐसा ज़माना होगा कि मुसीबतें ही मुसीबतें होंगी, परेशानियाँ ही परेशानियाँ होंगी, वबाएँ ही वबाएँ होंगी, बीमारियाँ ही बीमारियाँ होंगी। आक़ाए नामदार इरशाद फरमाते हैं, ऐ साहबे कराम सुनो, वो दौर वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाइयाँ करते करते घरों से बाहर निकल जाएंगे, मार्केटों पे आ जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, चौराहों पर आ जाएंगे। हमने चंद माह कबल देखा है कि हमारी गुनाह इतनी हद से तजावुज़ कर गई थी, हम इतने गुनाह में मुलव्विस हो गए थे, हमारे गुनाह इतने हद से बढ़ गए थे कि वो बीमारी हम पर मुसल्लत की गई। और यही नहीं बल्कि आका ने इरशाद फरमाया था, आज लोगों को रोका करते हैं, ऐसा बेकराम सुनो, वो दौर वो होगा कि बीमारियां लोगों को रोक रखेंगी। हमने एक आखिरी बात, आज हमारे अंदर तमाम चीज़ों की गुनाह मुलव्विस हैं। अभी चंद रोज़ पहले 15 फरवरी की बात, 25 फरवरी की बात है, चंद दिन पहले एक हादसा हमारे सामने पेश आया, सबके सब उस पर ये कहते हैं कि उसके साथ बहुत गलत हुआ। यानी जिस लड़की ने खुदकुशी की है उसके ताल्लुक से सब कहते हैं उसने गलत किया। मैं मानता हूँ
غلط उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, हम कहते हैं, मैं भी कहता हूँ उसने गलत किया, मैं उसकी तरफ से नहीं बोलता, हालांकि शरीयत मुस्तफ़ा ने नाजायज़ कहा है उस काम को किया, लेकिन तू आज कहता है गलत किया। लेकिन जब तू अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने के लिए जाता है तो ये चीज़ भूल जाया करता है कि शरीयत ने इसे नाजायज़ करार दिया। हज़रात मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आज तेरी वजह से कौम मुस्लिम की लड़कियाँ तबाह हो रही हैं। अगर तबाही खाने में देखा जाए सबसे ज़ायद अगर किसी की औरतें मिलेंगी, किसी की लड़कियाँ मिलेंगी, तो मुस्लिम घराने की लड़कियाँ आज ज़िना के अड्डे पर मौजूद हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? कभी तूने सोचा इसकी वजह क्या है कि आज मुस्लिम की औरतें बदकारी के अड्डों पर मौजूद हैं, आज अपनी इज्जतों को बेच रही हैं। आज तेरा हाथ है, अगर आज तो जहेज के नाम पर उनके घरों को लूटना ना शुरू किया होता, जहेज जैसी लानत को अपने माशरे में पैदा ना करता, तो मैं दावे के तौर पर कहता हूँ जिस तरीके से आज मुस्लिम कौम की औरतें, मुस्लिम कौम की लड़कियाँ आज ज़िनाकारी के अड्डों को आबाद कर रही हैं, वो आबाद ना करती बल्कि वो शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारती। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जब तेरी बेटी की शादी होती है तो तू कहता है कि शरीयत मुस्तफ़ा ने जहेज को नाजायज़ करार दिया है। याद रख, जब तू अपने बेटी के लिए रिश्ता देखने जाता है फिर क्यों भूल जाता है अपने माशरे से इस जैसी बदकारी फेल को, इस जैसी बुरी चीज़ को निकालो और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, वरना आज तुम किसी गरीब के दिल को ठोस पहुँचाओगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिल से जो आवाज़ निकलती है अथ वही ताकत परवाज़ नजर रखती है। याद रखना, किसी गरीब ने तुम्हारे लिए बद्दुआ कर दी तो तुम हलाक हो जाओगे। इसलिए इस जैसी लानत को अपने माशरे से निकालो, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब औरतों से अपने लड़कों की शादी कराओ। परवरदिगार आलम इससे खुश होगा। परवरदिगार आलम की बात